टिपिकली हमें लगता है ना कि जब बच्चा 10th तक एक्सपोज होता है, ओलंपियाड कर रहा होता है, तो उसके लिए चीजें आसान हो जाती हैं, स्पेशली मैथ्स को सेलेक्ट Yes, करना. yes. बट ही वाज प्योरली फोकस्ड ऑन बोर्ड्स, एंड देन समहाउ आई थिंक विद इन द फैमिली दे डिसाइडेड Yeah. कि मैथ्स करना है, ये नहीं करना है, आईआईटी नहीं करना है. इट्स वेरी डिफिकल्ट इन इंडिया टू एक्चुअली गो अगेंस्ट द नॉर्म्स कि आईआईटी नहीं करना, नीट नहीं करना, यार मुझे ये वाली चीज करनी है, राइट? You need to be little different to think in that direction, self-belief. right? And have lot of self-confidence, self-belief. But other than that, online distractions के लिए what I did was कि मतलब एक Excel sheet ली और फिर उस पर जितना भी टाइम पूरे दिन में मतलब रिकॉर्ड किया कि मतलब कहाँ टाइम जा रहा है. और एक और चीज़, ये बच्चे हमेशा मुझसे जो पूछते हैं, लेट मी आस्क ऑन देयर बिहाफ, ये जो टॉपर बच्चे होते हैं यार, ये दिन में क्या 10-12 घंटे पढ़ते हैं, राइट? सो दे मस्ट बी लाइक क्रेजी स्टडिंग 10, 12, 15 hours. You tell me. So we are talking to Rishit. He's got rank 1 in ISI. Very bright student. And today we are here to talk to him to know more about what is going on in his mind. How did he choose ISI? But Right. before that, Pulkit, I think I will start with the first question. You know, these days students have started thinking other than IITs, and that's great, right? Because earlier anyone who has taken up PCM, their first choice is always IIT. So I would start with this question: why not IIT, and why only ISI? You have not given IIT, right? No. Yeah. So जब like when I took PCM, initially like we were going to take commerce before PCM because I didn't want to do physics and chemistry. मतलब मुझे I was very scared of physics and chemistry, especially JEE का जो level था. So I never wanted to go for engineering as well. So जब मतलब we started doing, जब Olympiad start किया था मैंने, तो we learnt about ISI. So that was a very good opportunity for us कि मतलब इसमें there is no physics and chemistry. So इसलिए ISI math के लिए. But नहीं, yeah, तो I'm I curious. will take to Pulkit, right, this question, because Pulkit sir also hated chemistry. अच्छा. Right? He hated chemistry like anything. So Pulkit, just tell me at that point of time, if you were so aware about ISI, I did not choose an ISI. Yeah, I would have loved to get into math had I known that, but I didn't know. But again, that brings me to this question, right? So forget about physics and chemistry, हाँ. but how much do you love math that you want to pursue math as a career in your life, right? To a large extent. हाँ, like I just enjoy doing math whenever, मतलब as a stress buster also, अगर मुझे math करना है तो I wouldn't mind doing it. And when did you get to know about this? When did you take this choice? Was it class 8th or 9th or 10th? No, When it was like 11th, like 6 months into 11th grade. And then you decided. Yeah, that we were like after IOQM, like I didn't clear RMO, तो उसके बाद I decided कि I'll do ISI. Okay, so your journey sort of in math started with your 11th. Olympiad preparation. Yeah, in And 11th when did grade. you start that? In 11th grade, Achha, starting. 11th. Yeah. So he didn't actually prepare till 10th. मतलब he didn't know anything. Yeah. I'm sure, right? Yeah, I That's didn't what know our anything. sir told me. Yeah. Oh, that's Till 10th, wonderful. he was like a clean slate, Yeah. right? So you were focused only on boards. till Yeah, मुझे कुछ नहीं पता था Olympiads, nothing. See, so that's why his journey is very incredible for all the students who is watching, because typically हमें लगता है ना कि जब बच्चा 10th तक एक्सपोज होता है, ओलंपियाड कर रहा होता है, तो उसके लिए चीजें आसान हो जाती हैं, स्पेशली मैथ्स को सेलेक्ट Yes, करना. yes. But he was purely focused on boards, and then somehow I think within the family they decided Yeah. कि मैथ्स करना है, ये नहीं करना, आईआईटी नहीं करना है. हाँ. And that's why they started looking for. तो पहले तो ये बताओ, पता कैसे चला तुम्हें कि मतलब कुछ ISI करके होता है, number 1, and number 2 about Vedanta? So all thanks to my mom कि हमें मतलब she was researching for math things online. So that's how we found about Vedanta, mostly on YouTube. जो free sessions होते थे अभय सर के, तो उससे पता चला. एंड देन उससे जब वही वीडियोस देख रहे थे तो मतलब ISI के भी वीडियोस आते हैं VOS पे कि मतलब why it is a good college for math lovers and why we should go there. तो उससे भी और अवेयरनेस मिली और फिर और रिसर्च किया ISI की वेबसाइट पे जाके, तो we decide कि ISI is a good choice for us. So it's very interesting. I mean, as parents, to take this choice also. So you talked about your mother, right? Tell us more about the support that you got from your parents in your decision making.
So my parents are always like they left me to my own choice. They never forced me कि IIT करना है या फिर कुछ और करना है. They were all कि जो भी मुझे करना है, they'll support me in that and they'll let me do whatever I wanted to pursue. अच्छा, तो लाइफ में दो लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है, तीन का. सो पेरेंट्स, टीचर्स एंड योर पीयर ग्रुप. Yeah. So what was your peer group, preparing for, and what were they? What were your discussions with them? So my peer group, मतलब school में, they were all preparing for JEE and NEET and they had never heard about ISI या फिर Olympiads. So when I used to tell them कि I'm preparing for this, तो उनको मतलब कुछ alien जैसा लगता था कि कुछ दूसरी चीज़ के लिए prepare कर रहा है ये. तो ISI तो commonly is हाँ Miss वो Pakistan. पाकिस्तान का जो वो है. नहीं, but I mean, when all your friends are not preparing for it, so did you not at times feel कि यार कुछ गलत तो नहीं कर रहा मैं, कोई चॉइस गलत तो नहीं ले रहा लाइफ में? वैसे मोमेंट्स आए थे 2-3 बार, बट देन जो वेदांतु का जो ऑनलाइन में टेलीग्राम ग्रुप होता है, उसमें भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन सिमिलर स्टूडेंट्स जो मतलब, तो वो थोड़ा-सा कंफर्ट आ जाता है कि ऐसे भी बच्चे हैं जो मेरे जैसे हैं. एंड देन आई टॉक टू देम. एक मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था शुभ अग्रवाल, तो उससे भी बात की थी. तो yeah, it was very, That convinced you. yeah. So it's also very important, right? The peer group. अगर तुम्हें लग जाता है कि तुम्हारे जैसे कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं, मतलब तुम्हारे जैसे क्रेजी हैं, मतलब typically, because it's very difficult in India to actually go against the norms कि IIT नहीं करना, NEET नहीं करना, यार मुझे ये वाली चीज करनी है, right? So I think you need to be little, I would not say crazy, but you need to be little different to think in that direction, self-belief. right? And have lot of self confidence, self belief. So उस पे थोड़ा बात करते हैं ना कि मतलब exactly your self belief, right? In 10th तो you were just like यार chill life, chill है, board है, अच्छा करना है. उसके बाद वो बिलीव कैसे डेवलप हुआ कि IIC पहले तो एक क्वेश्चन भी नहीं हिलता है देख के, राइट? एंड ट्रस्ट मी, मतलब आई हैव आल्सो गिवन दैट. It's very difficult. Every question is very difficult, right? So how did you your confidence started increasing कि कभी लगा कि रैंक 1 आ सकती है? मतलब सर तो मतलब इनिशियली तो बहुत डर लगता था ISI के मतलब एग्ज़ाम से ही, बिकॉज़ इनिशियली आई वांटेड टू कि मतलब इनमो से भी ज़्यादा डर लगता था कि मुझे ऐसा था कि मैं RMO क्लियर करके फिर इनमो क्लियर करके वो जो अवॉर्डी वाला लिस्ट है उसमें से ISI में जाऊँगा. पर फिर मेरा जब RMO नहीं क्लियर हुआ तो फिर उसके बाद आई स्टार्टेड लाइक रिसर्चिंग मोर अबाउट RMO, सॉरी ISI. एंड देन थोड़ा-सा मतलब ऐसा लगा कि लेवल है ज़्यादा, पर अगर थोड़ा-सा मेहनत करूँगा, पढ़ाई करूँगा तो फिर इट इज़ स्टिल डूएबल. requires courage, Pulkit. A lot of courage. मतलब trust me, in India, and I have taught so many students and good students. Maths is something which is not so easy to come, and maths like ISI's paper, like it's really difficult. And people who have not seen that paper, please go out there and research and see that paper. It's really, really difficult. And uh, solving not one question, two question, or three questions, he solved 5 correct, right? Yeah. So it's like amazing in 2 hours, 5 questions of that level. And you, Pulkit sir is a math teacher. I don't know you know that or not. Oh, So, I remember. at his time also, he also tried few questions of ISI. So हाँ, मुझे बाद में देखा था मैंने, मुझे तो पता नहीं था ISI के बारे में, बट यार वेरी इंटरेस्टिंग. एंड दे वेरी रेयर स्टूडेंट्स हु एक्चुअली चूज मैथ एज देयर career option. And I think the future, now everything which is happening in the world is happening around math. So I Yeah. think you're at a great place and great choice. But coming back to that, तो आपके दोस्त नहीं कर रहे थे. They are हाँ. preparing for JEE and NEET, and I'm sure most of them were going to the offline centers. Yeah, coaching Right. centers. Coaching centers. Allen, Fitji वगैरह. But I think you prepared entirely online, Yeah. right? So again, बहुत सारे differences with your peer group. So how did this online learning go for you? So honestly, I'd say that the online learning was actually very like much more convenient for me because I could learn on my own pace. So most of the time, मतलब my dad used to say कि live जो भी classes हैं वो attend करो, but I never liked attending them live क्योंकि recorded sessions में मतलब I could आगे पीछे कर सकता था, I could go on my pace. So I really like that most of the time. So yeah. And did you used to remain in touch with your teachers, your mentors?
या टेलीग्राम से मतलब अगर कुछ डाउट्स रहते थे, अगर टेस्ट में अगर कुछ क्वेश्चंस जो नहीं हुए हैं तो वी यूज्ड टू आस्क देम, और पजल्स भी देते थे। बहुत सारे टीचर्स बोलते थे कि टेलीग्राम पे मैसेज करो कि आंसर आया तो। अबे सर, हाँ, ये तो अब पजल के ऐसा फैन है बहुत बड़े। चेतन सर, अब चेतन सर, सर अभय सर। like हाँ। I just saw one podcast, मतलब जहाँ पे एक बच्चे के साथ पॉडकास्ट किया कि 7 days he took to catch a thief. या So that's a puzzle in which actually you solve how to catch a thief in 7 days. So it took 7 days for that student to solve that puzzle. So that kind of puzzle. So So who was your favorite mentor in all these teachers? सो आई थिंक अभय सर वाज द फेवरेट मेरे लिए, बिकॉज उन्होंने मेरी ओलंपियाड की जर्नी स्टार्ट की थी आईओकेएम के समय, एंड आई रियली लव्ड हाउ ही टॉट। सो अच्छा सर, 2 years की प्रिपरेशन पे आते हैं, राइट? सो यू आर एट होम मीटिंग फ्रेंड्स हु आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, राइट? आई मीन, अच्छा ये मुझे बताओ कि इस पूरी जर्नी के अंदर, 2 साल की जर्नी के अंदर, डिड इट गो एज पर द प्लान और देयर वर लाइक अप्स एंड डाउन्स फॉर यू, एंड हाउ डिड यू कोप अप विद द डाउन्स इफ देयर वर एनी? so initially what the plan was that I would matlab 11th mein I would clear RMO and study for INMO, and then 12th mein I would clear INMO and then go to ISI from that. But obviously मेरा 11th में भी RMO clear नहीं हुआ, फिर 12th में भी RMO clear नहीं हुआ, तो मतलब थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था तब भी। और मेरा ज्योमेट्री बहुत वीक था, मतलब मेनली जो RMO क्लियर नहीं हुआ वो बिकॉज ऑफ ज्योमेट्री ही था, because there were many questions that year that came from geometry, मतलब 2 क्वेश्चन थे, तो उसमें से एक आई थिंक आसान था थोड़ा सा, पर थोड़ा सा भी आता था तो कर लेता मैं, तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। तो तब आई स्टार्टेड कि मतलब ज्योमेट्री भी इम्पॉर्टेंट है, आईएसआई के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आई स्टार्टेड लर्निंग मोर ज्योमेट्री एंड देन आई स्टार्टेड पिकिंग माई सेल्फ बैक अप उसके बाद, एंड देन या। और मोबाइल फोन्स यूज करते हाँ, थे? मैं इसी पे आ रहा था कि हाँ। पुलकित केवल पढ़ाई की बातें कर रहा है, मतलब बिकॉज सी घर पे हो, पीयर ग्रुप कहीं और जा रहा है, बिकॉज टिपिकली 11th-12th में एवरीवन स्टार्ट्स गेटिंग बिजी। Yeah. तो जो 2 साल की जर्नी है, मतलब अपार्ट फ्रॉम मैथ्स व्हाट डिड यू डू, मतलब उसने मोबाइल बोला है बट क्या किया मतलब? हाँ, मतलब सो आई यूज्ड टू प्ले बास्केटबॉल मोस्टली, अगर इवनिंग्स में जाता था मैं, पर वो बहुत ज़्यादा खेलता था, मतलब कि अगर एक दिन बास्केटबॉल गया तो उस दिन फिर पढ़ाई नहीं होती थी। और वीडियो गेम्स भी खेलता था थोड़े, मतलब 11th में भी 12th में भी, पर फिर और आई वाज ऑलवेज, जब भी जो शॉर्ट्स और रील्स वगैरह स्क्रॉल होते थे रात को, तो जब बंद करता था तो ऐसा लगता था कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, हर रात ऐसा लगता था। और फिर अगले रात फिर वापस करता था, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अभी मतलब इट्स टाइम टू बी सीरियस, तो मैंने कब फिर लगा वो? वो जनवरी में, मतलब 12th के जनवरी। That's very important, kid. So see, this is one of the thing that I, you know, love when you choose your subject of your choice, right? Typically, when you choose not a conventional thing, you have a lot of time to balance between your studies. As we talked to Daksh also, right? Daksh ने भी exactly ये बोला कि online का सबसे बड़ा advantage था, it gave them lot of time and balance, because आजकल कहीं भी जाने आने में तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट होता है, and you try to go there, spend time on other things rather than on your own self. And here, when you get time, 1 hour or 2 hour, you play, you balance your studies, or you do your hobby. तो रील भी देखता था भाई, so what reels? बस वही इंस्टा पे ऐसे आती रहती है तो स्क्रॉल करते रहता है। हाँ, So are you on YouTube, मतलब you yourself? इंस्टाग्राम? Instagram, YouTube? नहीं नहीं, नॉट रियली, मतलब आई वांट टू स्टार्ट अ यूट्यूब, एक CTPCM करके बुक है जिसका सॉल्यूशंस नहीं है कहीं पे, तो आई वांटेड टू लाइक मेक दो सॉल्यूशंस एंड शेयर इट। अच्छा, तो होते हैं अप डाउन्स होते हैं और डिस्ट्रैक्शंस, बताना अगर हुआ है तो, और उसमें पेरेंट्स का क्या रोल था? हाँ, तो मतलब जो ये वीडियो गेम्स हैं और वो सब है, तो मतलब पापा मम्मी तो हमेशा बोलते थे कि मतलब अभी पढ़ाई कर ले, 2 साल ही हैं या फिर 1 साल ही बचा है, उसके बाद जो भी वीडियो गेम्स खेलना खेल लेना। वो मैं 4 साल के बाद पूछूंगा कि 2 साल ही हैं। वो तो खत्म ही नहीं होगा। वो कभी जिंदगी में नहीं खत्म होता। हाँ, So who used to you listen to more, your father or mother? माय मदर। मेरे घर में भी मम्मा ही से सुनना पड़ता है वो तो भाई। तुम्हें भी सुनना पड़ता है। तो भाई अपनी बात कर रहा हूँ। मुझे तो आज भी सुना देती है। तो बेसिकली उस दिन बताया था ना कि पिछली बार जब जेई मेन का रैंक आया, ठीक है, तो मेरे को कॉल आ गया, तुम्हारे क्यों रैंक नहीं आया, ठीक है, बिकॉज माय ब्रदर आल्सो इज टीचिंग एंड
वो compete करती रहती है हम दोनों में कि अच्छा उसका रैंक है तुम्हारा नहीं है, अच्छा तो मुझे आज भी डांट पड़ती है. Distractions पे करते हैं मतलब basically because this especially Bangalore, you have a lot of exposure to, you know, not only media, तो everyone is exposed, but there is a lot of other exposure also in school also. People, you know, tend to go in they have a lot of other ideas and which tends you to take you away from the path. So did it happen in 2 years कि मतलब ऐसा कुछ हुआ कि वो peer circle या कोई friend circle ऐसा बना जो कि तुम्हें दूसरे रास्ते पे ले जा रहे थे, कहीं उसकी वजह से distractions? वैसे मेरा पीयर ग्रुप तो मतलब बहुत अच्छा था कि उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, मतलब वो पढ़ाई में ही कर रहे थे। बट अदर देन दैट ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शंस के लिए व्हाट आई डिड वाज़ कि मतलब एक एक्सेल शीट ली और फिर उसपे जितना भी टाइम पूरे दिन में मतलब एक रिकॉर्ड किया कि मतलब कहाँ टाइम जा रहा है पूरा। शुरू से ही stats था. Good statistical approach, yes. तो मतलब जब भी ऐसा लगा कि मतलब टू मच टाइम इज़ गोइंग इन यूट्यूब या फिर ऐसा कोई ऑनलाइन में स्क्रॉल कर रहा हूँ वगैरह, तो मतलब वो अच्छा भी नहीं लगता खुद को देख के कि इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो आप मतलब इतनी चीज़ों में। तो देन आई डिलीटेड इंस्टा एंड यूट्यूब इन जनवरी और फिर So what was your study style? मैं वो समझना चाहता हूँ कि for example, let's take a day in your life, right? ओके। How did you used to study? मतलब how much time did you devote to learn something? How much time did you devote to practice something? So how was it? सो मतलब एंड के मोमेंट तो मतलब प्रैक्टिस ही ज़्यादा था, लर्निंग तो कुछ मतलब आई यूज्ड टू ऑलवेज ट्राई टू लर्न फ्रॉम दीज बुक्स मतलब सो मेरा ऐसा था कि मॉर्निंग्स में आई वुड मतलब माइंड को फ्रेश करने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करता था एंड देन देयर वाज द वेदांतु क्लासेस करता था एक दो मतलब 1.5 घंटे की एंड देन आई यूज्ड टू जो बुक्स हैं ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज एक हैं उसमें आई यूज्ड टू स्टार्ट कि एक मतलब एक पूरा वो ब्लॉक रहता था कि एक पूरा मतलब पहले वो बताते हैं कि सॉल्व कैसे करना है एक सॉल्व एग्जाम्पल से और फिर एक्सरसाइज होती थी तो फिर एक पूरा वो करता था मैं कि पहले लर्न करो और फिर एक्सरसाइज उसका। Got it. और एक और चीज़, ये बच्चे हमेशा मुझसे जो पूछते हैं, लेट मी आस्क ऑन देयर बिहाफ, ये जो टॉपर बच्चे होते हैं यार, ये दिन में क्या 10-12 घंटे पढ़ते हैं, राइट? सो दे मस्ट बी लाइक क्रेजी स्टडीइंग 10, 12, 15 आवर्स. यू टेल मी. सो ऐसा लगता है कि मतलब आई मैक्सिमम जो मेरा स्टडी था वो अबाउट 12 आवर्स था पर कंसिस्टेंटली आई कुड डू 10 to 11 आवर्स तो बट पढ़ते हैं, यस करेक्ट, बच्चे पढ़ते हैं. बट इट्स नॉट एट हार्ड एज इट सीम्स मतलब एक बार वो रट बन जाएगा एक वीक के लिए अगर आप 10 से 11 घंटे पढ़ोगे तो फिर ऐसा लगेगा कि रोज का है ऐसा आसान से हो रहा है फिर the subject also should be कि you are able to study 10 to 11 hours for that subject like you should like that subject that much कि ऐसा लग नहीं रहा है कि बोर हो रहे हैं 10-11 घंटे पढ़ने के बाद भी। That is important. Yes. Actually, so I think जो सबसे important चीज़ है ना बच्चों वो ये है कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा किसी भी सब्जेक्ट में तो आप नहीं पढ़ पाओगे एंड बहुत क्लियर सी बात है मतलब अगर अपन भी आज की तारीख में कोई भी काम करते हैं मतलब वी आर नॉट एबल टू डू इफ वी डोंट एंजॉय दैट राइट सो देयर इज नो टाइम देयर मतलब आई थिंक देन सुबह उठ के भी आप वो अगर मैथ्स में इंटरेस्ट है तो सुबह उठ के भी मैथ्स बना सकते हैं रात में सोते वक्त भी मैथ्स बना सकते हैं दिमाग में भी आपके मैथ्स चल रहा होता है सो देयर इज कंटिन्यूटी and I think that is more important that you should choose your subject of your choice and clearly उसको passionately follow करो फिर. There's and one more thing as well. So see, one is your love for your subject. Yes, I agree. The second is reaching rank 1. I'm pretty sure it takes a lot of zeal to excel in a particular for a particular target as well. So how deep was that zeal in you to ace this exam to get rank 1? So फायर कितना था वो फायर तो था लेकिन मोस्टली इट वाज कि मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं चाहिए थे किसी भी चीज़ में कि अगर मैं आईएसआई के लिए भी पढ़ रहा हूँ फिर किसी और चीज़ के लिए भी कि अगर मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता तो मुझे थोड़ी सी और अच्छी रैंक आ जाती या फिर ऐसा कुछ तो आई ऑलवेज वांटेड टू बी कि मतलब जितना भी एफर्ट है उतना डाल लो और फिर उसके बाद भी अगर कोई रैंक नहीं आ रही है तो फिर इट्स नॉट योर फॉल्ट कि आपने उतने एफर्ट्स नहीं डाले। मतलब बच्चों मतलब व्हाट ही हैज सेड इज लाइक शास्त्रों में भी लिखा है हमारे कर्म कर फल की चिंता मत कर मतलब यू शुड रियली वर्क हार्ड सो दैट देयर इज नो रिग्रेट यस and I think that is very very core it's very difficult it's really difficult because कहना आसान है
करना बहुत मुश्किल है कि आप रिग्रेट नहीं करो, बिकॉज कहीं ना कहीं हम कर लेते हैं, बट इट इज अगेन इट ऑल स्टार्ट्स विद, अगर मैं पूरे इस इंटरव्यू की बात करूँ, इट स्टार्ट्स विद फॉलोइंग योर पैशन, then be at it. Do not get deviated from what others are doing, because you have, it is your choice, and then Give your best. give your best and have no regrets. Yeah. Very mature. अब क्या करोगे, मतलब अभी अगले 1-2 साल कैसे प्लान किया कि अब तो आईए से जा रहे हो, तुमको इंटरनल इन्फॉर्मेशन भी है कि एग्जैक्टली क्या होता है, कि तुम्हारे सर जो हैं ललित हाँ, सर, ही इज आल्सो फ्रॉम Yeah. आईएसआई himself. So what are you going to do next? सो अभी तो ज़्यादा कुछ रिसर्च किया नहीं है, अभी थोड़ा सा करना है. आई एम लीनिंग टुवर्ड्स क्वांट फाइनेंस के उसमें, और फिर ऑब्वियसली जैसे दुनिया जा रही है एआई की तरफ, तो उसमें थोड़ा सा आई डिप माय फीट इन दैट एज वेल. तो एंड मोस्टली आई जस्ट वांट अ करियर दैट्स फ्लेक्सिबल इनफ कि मुझे मतलब सारी दुनिया जाना है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, सब कुछ कैसे हो रहा है. both are great choices, because I think quantfin and AI दोनों ही वर्ल्ड को रूल करने वाले हैं नेक्स्ट 5 to 10 years. Definitely a good choice. Yes, super excited for you थैंक यू. and wish you all the very best. Guys, so here's Rishit, and as you've seen, right, taken a choice that he loved and pursued it and been at it and given his best to achieve the best. That's exactly what you have to do. With no regrets. With no regrets, yes. I would just like to say that follow your passion and put all the efforts that you can, and you'll reach amazing heights.